Hello everyone. Today I'm starting a new lecture for solve in mathematics so that we can solve more questions in our next video. And this is one of the most basic and most important topics. Without this, you can't push it further. So it is necessary to go through this topic and must preserve every time because this topic will always ask in question exam, but you never realize that thing. Okay, let me begin. The basic topic name is basic mathematics. Okay. So, in our today's discussion, we're going to understand some of the basic rules of inequalities. First of all, we should know what is inequality. Inequality, like from the word, we can derive this thing. Unequal simply means those two quantities which are not equal. Either one is greater, or one is lesser, or one is greater than equals to, or one is less than equals to. Okay. To solve this, we should need some. Till now, we have studied that we are most comfortable in solving equalities. But now, since these type of thing exist like inequalities, we should know some other mathematical rules to solve these questions. So, a first rule to solve the inequality, we must preserve that rule of addition. This is a basic rule. How do we gonna add when there are some inequalities? Okay, let's suppose our inequality is A is greater than B for every question, every rule we're gonna learn. So according to the rule of addition, when we add a constant, I'm telling that a constant, it must be positive or it must be negative. The sign of inequality doesn't get changed, which implies this thing. It must be a positive number or a negative number. Okay, it doesn't matter. A plus G must be greater than B plus K. ठीक? According to the rule of addition, if we have inequalities, okay, so A is greater than B, which is the greatest term? A. C is greater than D, C is the greatest. E is greater than F, E is the greatest in these three inequalities. So what we can write, we can add any number of inequalities of the same nature. It implies A plus C plus E is greater than B plus D plus F. Okay, तो एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, एग्जाम्पल अगर लिखा जाए 2 is greater than 3, 2 plus 1 is greater than 3 plus 1, definitely. सॉरी, देखा हमने लिखा ही गड़बड़ है. 4 is greater than 3, 4 plus 1 is greater than 3, 4 minus 1 is more than 3 minus 1. Here we are adding minus 1, here we are adding plus 1. Okay, now up this 2 is greater than 1, 3 is greater than 4. So 2 plus 3, 5 is greater than. Okay, again it is wrong. What we gonna write? It is 4 more than 3, which implies 6 more than 4 is a true result. So it is gonna rule of understanding. Okay. Now we're gonna discuss the rule of multiplication. Let me multiply. Okay, multiplication. According to the rule of multiplication, if A is more than B, if we multiply a positive constant
A is greater than bk provided a is a positive constant and k is a negative constant. ठीक, k is a negative constant. अच्छा, ठीक है. Example. So according to, we have learned that a is greater than b. If you multiply a positive constant k, then the sign of inequality doesn't get changed. But if you multiply it by negative constant, then the sign of inequality gonna be changed. As you can see that thing. Okay? Okay. Okay. One more thing. A is greater than B. C is greater than D. Let us consider two inequalities. This inequality, this is a new inequality. It will hold. This is BD. This inequality will hold good if A, B, C, D are all positive. Unless until it will not hold. Okay? Okay. So we have completed the rule of multiplication. Let me first complete the theory, then I will solve some problems to maybe get you know things. Okay? Okay. You have to note it down in your notebook and I go through them after the lecture. Okay? So let me start rule of squaring. Rule of squaring. If an inequality is this, according to rule of squaring, if a is a non-negative number, it implies a either a positive or equals to 0. Similarly, if b is either a positive or equal to 0, then on squaring, the sign of inequality will not change. Second rule, if a is a non-positive number, non-positive मतलब सिंपली कह सकता हूँ कि a and फर्स्ट केस में मैं बताता हूँ. If b is also a non-positive number, then the sign of inequality is going to change. Okay? ठीक है. और if a number x, the variable number, varies from a negative number to a positive number, then its square always varies from 0 to square of bigger number. Bigger number मतलब नेगेटिव, अगर नेगेटिव जैसे लेट्स -3 है, एग्जांपल इसको लिख देना जरूरी है. -3 से x हमारा 1 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से, अच्छा -3 का स्क्वायर बड़ा है जो कि होगा 9 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो डेफिनेटली ये चीज ऐसे. ओके. अच्छा, मैंने डायनिंग इनइक्वालिटी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे चेंज नहीं हुई, यहाँ पे चेंज हो गई, है ना. ये आपको रूल देखनी चाहिए. अच्छा, बहुत बार इस चीज को ना बताते हुए, जब दोनों ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव समझ रहे हो ना, कोई भी नेगेटिव ना हो, मतलब या तो 0 या उससे बड़ा हो.
और लेस देन इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब होता है नॉन पॉजिटिव। मैथमेटिकल टर्म्स में क्लियर होनी चाहिए, नॉन पॉजिटिव। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। कोई भी इनइक्वलिटी ए ग्रेटर देन बी, अगर उसमें जो दोनों टर्म्स है इनइक्वलिटी के लेफ्ट और राइट में, अगर वो नॉन नेगेटिव है तो स्क्वायर कर लोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर दोनों नॉन पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव के बीच में वेरी करता है तो उसका स्क्वायर डेफिनेटली जीरो से लेकर उन दोनों नंबर में से बड़े वाले के स्क्वायर के बीच में लाया करेगा। ओके, दो आंसर। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4, रूल ऑफ रेसिप्रोकल। रूल ऑफ रूल ऑफ रेसिप्रोकल। यही इनइक्वालिटी हमारी सेम ही है। आप उसके लिए उल्टा भी कर लो, कोई ऐसा नहीं है। बात को सुनना, मैंने कहा था साइन रिवर्स होना और साइन सेम कब रहेगा, ये हमारी इनइक्वालिटी में मेन मतलब है। ठीक, अब अगर ये है, ये है, मैं तीन केस बनाता हूँ। या तो दोनों पॉजिटिव नंबर, एक बार नॉन नेगेटिव नहीं, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं हुआ है। जीरो इंक्लूड हो गया तो नॉन नेगेटिव है, बट जीरो इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव नंबर है। तीन केस हो सकते हैं, या तो कोई एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, या इसका उल्टा कर लो। तो होता क्या है, ये तीन केस बन रहे हैं, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव। ये आखिरी केस हम देखते हैं। जब ऐसा कोई सीन हो तो साइन रिवर्सेस, मतलब वन अपॉन ए, it must be less than 1 upon b। इधर इस वाले में a की तरफ बढ़ा था, इसमें 1 अपॉन a की तरफ बढ़ा था। ओके, ठीक है। बट ये, अब ये कोई केस नहीं, इसका एक केस बनता है कि अगर हमारा नंबर सपोज b2a है, where b is a negative number और a is a positive number। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, where b is a negative number, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब सवाल आएगा कि वेयर वन अपॉन एक्स विल लाई, क्योंकि एक इंटरवल ही है ए से बी ओपन। तो अब सवाल आएगा कि वन अपॉन एक्स कहाँ रह जाएगा। तो रूल ऑफ रेसिप्रोकल कहता है कि जो वन अपॉन एक्स होगा हमारा, वो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस बी तक रहेगा, यूनियन ए से लेकर इंफिनिटी के बीच में रहेगा। ये था। ओके, हाँ, ठीक है, ये चीज हो गई। एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा देता हूँ। लेट्स सपोज साइन एक्स, वो हमारा -1 से 1 के बीच में रहेगा, 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स। इसकी डेफिनेशन, इसकी तो पता ही है, ये -1 से छोटा होता है, बट 1 से बड़ा होता है। कैसे आया ये भी बता रहा हूँ, ये कैसे आया। रेसिप्रोकल कर लो तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में एक्स में इक्वलिटी भी होल्ड है, यूनियन डेफिनेटली 1 अपॉन कॉस एक्स यहीं का इलाज करेगा।
वन अपॉन कॉस एक्स जब यहाँ का लाया करेगा तो वो 1 से बड़ा रहेगा, तो -1 से छोटा रहेगा। ठीक है, ये चीज याद हो गई? चलो बढ़िया एग्जाम्पल था। अब अब बात करते हैं रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड रूल ऑफ डिवीजन। बात करते हैं हमारे पास रूल 5, जो कि होगा रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें हमें पॉइंट अच्छा याद रखना है कि हम नो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन इज अवेलेबल, नो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन वी कैन डू, वी कैन डन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a greater than b, c greater than c, then this is not true. A greater than, sorry, this is not true that a minus c is more than b minus d. So how can we do this? This can be do by first multiplying c with a -1, then according to the rule of multiplication, the sign of inequality gets changed. First multiply by -1, तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग तो साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज हो जाएगा उसके बाद देन हम रूल ऑफ एडिशन लगा के सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट उस टाइम पे दिस थिंग गोना बी वर्क, दिस इज द सब्ट्रैक्शन। ओके, गॉट इट? या दिस थिंग विल इक्वल, ठीक है ना? एग्जांपल मैं देता हूँ बढ़िया सा एग्जांपल ले लो। लेट x equals to 2 से 8 and you have to find where and y is equals to 4 to 20. Find. So our aim is to find x minus y. So first we're gonna multiply y with -1, then we get minus y is equals to, according to the rule of multiplication, this is gonna be hold true. And then we add x less than y. We get x minus y over 2 minus 20, which is nothing but minus 18, and 8 minus 4, which is 4. X minus y must lie in this. Okay, good. Now we're gonna understand the rule of division. Okay. और क्या था मैं? हाँ, तो इसमें भी एक्सेप्शन याद रखेंगे हम। वी कांट डिवाइड डायरेक्टली। डिवीजन directly is not possible. What is this mean? What do you mean by this statement? It means x is more than y, z is more than a. So this thing is not equals x by z is not equals y by a. To solve this, we should first take the reciprocal and then multiply with the multiply
एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हैं। उनको बनाना। Let's suppose our x is in 2 to 20 and we have to find x by y, and y is in 1 to 100. So what about x by y? We can't do this thing 2 by 1, 1 by 5. This is a wrong one. This is a wrong one. Okay. So the correct one must be 51st reciprocal, and according to the rule of reciprocal, ये वाली भी देखो, पहले हम दो इनइक्वालिटीज को देखते हैं। y is less than, so 1 upon y is also less than 1 upon 100. Sign will not change. क्यों नहीं साइन चेंज होगा? साइन क्यों नहीं चेंज होगा? पागल हो क्या? चेक कर रहा था तुम, ध्यान रखते हो कि नहीं? क्या कहा था? जब दोनों तरफ इनइक्वालिटीज के 1 से 100 में, तो मतलब y भी पॉजिटिव ही नंबर है कोई, और दोनों तरफ जब पॉजिटिव हो, रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज हो जाता है। और y इज मोर देन 1, तो भी y पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल लूंगा तो साइन चेंज होगा। तो 1 अपॉन y है, 1 अपॉन y खुद एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अरे हाँ ना बोलो। ठीक। तो अगर मैं इस 1 अपॉन y को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, 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 x से, तो क्या होगा? x by y is more than 2 upon 100 into 20. This is a correct one. Okay, and then मल्टीप्लाई भी इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर थे। ये घुसा? घुसना चाहिए। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो करेंगे हम बेबी कर्व। बेबी कर्व लाओ। बेबी कर्व कहाँ है? हाँ। अब क्योंकि बहुत बार सवाल हमारे आते गंदे गंदे, अब हम करेंगे बेबी कर्व और साइंस की मेथड और मेथड ऑफ इंटरवल। के लिए हम हेडिंग डालते हैं बेबी कर्व मेथड। So in a wavy curve method और मेथड ऑफ इंटरवल्स और साइंस की मेथड, तीन अलग अलग नाम है, काम एक ही का। ठीक है। इस टाइप में हमें सॉल्व करना होता है अगर हमारे पास दो रैशनल फंक्शन है, दो फंक्शन है, रैशनल छोड़ो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। अगर इसको सॉल्व करना हो, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स कुछ एक्स में होगा तो डेफिनेटली एक फंक्शन है ना? तो कई बार सवाल में हमें फंसाता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसकी वैल्यू। तो पूछेगा कहाँ कहाँ फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, कहाँ का नेगेटिव है, कहाँ का इक्वल टू जीरो है, कहाँ का नॉन नेगेटिव है, कहाँ का पॉजिटिव है, ऐसे सवाल आते हैं। उस टाइम लगता है हमारे पास क्या, वेवी कर्व मेथड। और जब वेवी कर्व मेथड, क्योंकि 12 बताएगा नहीं, हमें एक ही बार में सीखना है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, चलो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? x माइनस 4 का क्यूब, 6 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। वो पूछ रहा है कौन सी एक्स की वैल्यू है जिसके लिए ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव आ जाए, ये वाला। हाँ, तो हमें रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा है स्टेप 1, हमें सबके रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए जितने भी टर्म्स है सबको जीरो कर देंगे। ठीक, तो अगर हम इसको जीरो करेंगे, ठीक, 6 माइनस एक्स को जीरो करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसलिए हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं।
ठीक, इससे हमें क्या होगा, जितनी पावर है उतनी बार रूट आएगा। स्टेप 1 में याद रखो, जितनी पावर है उतनी रूट आएंगे। क्यूब रूट है मतलब x-4 3 बार लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 बार आएगी। ठीक, मतलब 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 6 माइनस एक्स, इससे पता चलता है x 0 कब हुआ, जब 6 हुआ, x की वैल्यू। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, इससे मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6, अच्छा, तो इससे पता लगेगा कि x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस माइनस 6। ये बेसिक मैथ्स है। स्टेप 1 क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। x-4 का होल क्यूब, x अगर 0 है इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 4 होगी और वो कितनी बार आ रहा होगा, 3 बार आ रहा होगा। ठीक है, चलो, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x-4, 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 x इक्वल्स टू 4, 64 x इक्वल्स टू 4। ये ऐसे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, इसको आइडेंटिटी लगा लेंगे, x-6 x प्लस 6, इससे एक बार आएगा -6, एक बार आएगा एक, इससे 2 बार आएंगे 0। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2 बार 0। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। हमारा जो स्टेप 2 है वो है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर द नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन पे ये नहीं लिखना 4 4 4 4, नंबर तो एक ही, नंबर लाइन तो एक ही बनेगी हमारी। ठीक, इसमें कौन कौन से रूट है, एक है 0, एक है 6, एक है -6, 4, एक है 4, तो 4 का यहाँ भी होगा, 0 हो गया प्लस -6 हो गया, 4 हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम हाइपोथेटिकली मान लेंगे कोई भी नंबर, 6 से कोई बड़ा नंबर सोचो, 6 से कोई भी बड़ा नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ, तो हम थे कहाँ पे, हम्म, बताओ। अब 6 से कोई बड़ा नंबर है जिनको लो 7, 7। अब फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन ये था, फंक्शन क्या था कि x-4 का क्यूब इंटू 6 - 6, इससे 4 -36 एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन था। इसमें 7, 7 डाल के देख लो, ये वाला पॉजिटिव नंबर, ये वाला नेगेटिव, 7 के बार 4 बड़ा होगा, डेफिनेटली ये वाला बड़ा होगा, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक, तो नेगेटिव, ठीक है, इट इज नेगेटिव। तो 7 6 से बड़ा जब भी कोई नंबर होगा तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब लगाएंगे रूल। रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है 6, ये कितनी बार आया था, एक बार, 6 प्लस 6 2 बार, तो मतलब टोटल 6 आया था 2 बार। और जब भी कोई नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो उसका क्रॉस साइन चेंज नहीं होता, ये भी माइनस रहेगा। अब 4 पे चेक करेंगे, 4 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो जब ऑड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 एक बार, ठीक, 2 बार, 3 बार, 3 बार 0 आया तो मतलब साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। 0 कितनी बार आया, 2 बार, तो साइन चेंज नहीं होगा। -6 एक बार, तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो मेरा सवाल क्या था कि फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो बेसिकली फंक्शन का जो ग्राफ बनना है कुछ ऐसा, सॉरी 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 सॉरी, ये नेगेटिव में रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव,
फिर नेगेटिव रहेगा। तो फंक्शन कहाँ का पॉजिटिव था? फंक्शन इज ए पॉजिटिव इन दिस रीजन ना। तो ये तो भी x की वैल्यूज थी, तो आंसर मेरा होगा x बिलोंग्स टू, सब ओपन है क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी पॉजिटिव के लिए दी, तो -6 to 0 यूनियन 0 से 4। This is gonna be our answer. This is a very good method in a simplest manner. Now we gonna write some remarks so that we can solve this much better. Okay, remarks of very good method. Let me write it down. Wait for this second. Then I'm gonna explain you. So if तो अकॉर्डिंग टू कर्व मेथड रिमार्क्स में हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आर एच एस जीरो ना हो तो उसको लेफ्ट में ले जाओ ताकि वो जीरो बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एक्स प्लस थ्री बाई टू, which implies x square by 2 minus x square plus 3 by 2 more than positive, and on the left hand side we get a function। और बेबी कर्व मेथड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर x का फंक्शन मिल जाए और उस पर हम पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं। ठीक, ये रिमार्क नंबर 1 है। रिमार्क नंबर 2 है कि अगर मान लो कई बार बहुत बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू आए, उस केस में हमें डिनोमिनेटर के रूट्स को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड करना है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। So let me give you an example so that you can you can understand in a more efficient way what happened to start this. Plus 17 by x squared minus x into x cube plus x। आई नो, मैंने कहा था कि सब चीज को जीरो के इक्वल करो, इस चीज को भी जीरो के इक्वल करो, इस चीज को भी जीरो के इक्वल करो। इससे मुझे क्या मिलेगा? 0 0 1। इससे मिलेगा एक 0। रियल सॉल्यूशन चाहिए हमें। बट जब हम नंबर लाइन में प्लॉटिंग करेंगे ना इनकी, हमारे पास टोटल ऊपर वाले 0 करके कुछ रूट आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आएंगे। क्या क्या आएंगे? -4 आएगा एक बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। -1 आएगा, 0 आएगा, 1 भी आएगा। ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी जल्दी मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है, अब 1 के इसको सॉल्व करने में मेरे पास, क्योंकि 4 है तो 4 रूट आने थे, इसके है +1 -1 +1 -4, एक यहाँ पे 4 और आ गया, लो। ठीक, अब 0 कहाँ कहाँ बनता है? इसके लिए 0 डाली तो डिनोमिनेटर 0, मतलब ये एक रूट होगा, -1 भी एक रूट है, -1 नहीं है, -1 नहीं है, तो क्या 1 है? नहीं है। 1 क्यों नहीं है? 1 भी रूट है। तो अब क्या होगा? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्योंकि इक्वल्स आएंगे तो तुम आंसर में लिख दोगे होशियारी से, अच्छा अच्छी तरह एकदम, कि रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -∞ से -4 यूनियन -1 से 0, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ ये दिख रहा है इक्वल साइन, यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 4। बट ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने बताया था रिमार्क्स में कि जहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उसको इंक्लूड नहीं करना। तो करेक्ट वन में क्या होगा? ये 0 ओपन हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट वन, और कहाँ 1 पे भी ओपन हो जाएगा। ये समझा? ये होगा करेक्ट वन इसका। ठीक, अच्छा
अब कई बार क्या करता है वो, रिमार्क नंबर 3, कई बार वो क्या करता है, हमें एक साथ मल्टीपल इनइक्वालिटी दे देता है। एग्जाम्पल जैसे कि x² + 6x + 5 x² + 4x + 3 is less than 1 but greater than equals to 0। तो इस केस में डरने का नहीं है, हमें वेवी कर्व से पहले हम इन दोनों की एक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे एंड दोनों के कॉमन सोल्यूशन निकाल लेंगे। कॉमन सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। हाँ बस ये है कि थोड़े क्वेश्चन लंबे होते हैं, ठीक है। और इस केस में भी ये गलती मत करना, ये गलती नहीं चलेगी। ये गलती बिल्कुल भूल के मत करना। तुम्हें नहीं पता कि ये हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, इसलिए ये चीज गलत हो जाएगी। हाँ अगर तुम प्रूफ कर सकते हो कि ये चीज ऑलवेज, जी सॉरी, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एक्स, then you can go from this, unless until you have to do this thing, okay, this is the correct approach। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलो अच्छी बात है, एक रिमार्क लिख लो और टेक केयर ऑफ डोमेन। ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, एग्जांपल देख लो। सबको जीरो को इक्वल करो, इसके लिए होगी -3 1, इसको जीरो को इक्वल करूंगा तो एक्स के लिए होगी +-4। ठीक, बट डोमेन क्या कहती है, डोमेन क्या कहती है, डोमेन तो यही कहती है, डोमेन कहती है कि x-4 से छोटा और x 4 से बड़ा इक्वल। अब है ऐसा कोई, है जिसमें ये गेम बनना हो, ये कह रहा है कि x-3 है और 1 है, तो -3 यहाँ है और 1 भी यहाँ है, तो what? कॉमन सोल्यूशन निकालो, -4 -3 1 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमें तो चाहिए यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव हो, तो इस डोमेन का ध्यान रखते हुए हमने करा है काम। तो ये बनता है -∞ से -4, ओपन है तो ओपन रखेंगे हम, यूनियन -3 से 1, यूनियन 4 से इंफिनिटी। समझे, समझे कि नहीं। लेट्स सपोज हम
दोनों तरफ ये स्क्वायरिंग कर आना लो। चाहिए नॉर्मली, अगर हम ए भी ये भी करते पॉजिटिव चाहते है, हैं ये भी तो। पॉजिटिव है, पर डोमेन में तो यही वैल्यू आ सकती है, तो स्क्वायरिंग कर ले। इसलिए तो हमें क्या इसको बनेगा, हटाना एक्स पड़ेगा माइनस और सिक्स, तो इसलिए इसका इसका स्क्वायर करेक्ट प्लस जो टेन आउटपुट माइनस एक्स, बनेगा वो बनेगा ये। माइनस टू टाइम्स रूट होप यू एक्स गेट माइनस इट। सिक्स, रूट टेन माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, टेन माइनस एक्स होगा फोर, फोर तो हो गई थ्री, टू रूट एक्स माइनस एक्स रूट टेन माइनस एक्स। अच्छा, फर्दर स्क्वायरिंग कर लो क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो नाइन इज मोर देन फोर, एक्स माइनस सिक्स इंटू टेन माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर ले तो क्वाड्रेटिक हमारी, अब मुझे वही करना पड़ेगा, मार्क्स नंबर वन, उसको सॉल्व करके मुझे जो आता है वो आता है फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर एक्स प्लस टू फोर्टी नाइन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, ना आ गया, तो इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आती है। अच्छा, ठीक है, इसके जब रूट रूट निकाल लिए तो इससे मेरे दो रूट आते हैं। क्या, एक आता है सिक्सटीन माइनस रूट सेवन बाई टू, एक आता है सिक्सटीन प्लस रूट सेवन बाई टू, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए पॉजिटिव वाला, डोमेन का ध्यान रखते हुए। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 16 माइनस रूट 7 बाई 2, इट इज कंप्लीट। ठीक है, तो लेट्स सपोज व्हाट इज रूट 7, रूट 8 इज 2 रूट 2, 2 रूट 2 is 1.4, 2 रूट 2 1.4, 2.8, so 16 minus 2.8, 16 माइनस 2 मतलब 14, मतलब 6 से 7 के बीच में कोई वैल्यू है। तो x हमारा डोमेन को फॉलो करते हुए 6 के तो इक्वल आएगा क्योंकि 6 इसका रूट नहीं है, डिनोमिनेटर बात ही नहीं है। ठीक, देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो। ये चेक कर लेते हैं 16 माइनस रूट 7 की वैल्यू। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। व्हाट इज 16 माइनस 40 के रूट 7, ओके, वैल्यू रूट 7 2.64, ओके गुड, 16 माइनस 2.64, 16 माइनस 2.64 divided by 2, 6.68 डेफिनेटली। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये भी लाई कर देगा, और इसके से बड़ा है, डेफिनेटली इसमें 10 से छोटा है, इससे कम बन जाएगा, मतलब हमारा आंसर यही है। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं। हम्म, एक अच्छा सवाल है, इसको भी लिख लो, उसके बाद बाकी वीडियो, बाकी हम कल पढ़ेंगे मॉड्यूलस ग्रेडेशन इज अ फंक्शन, so that you can understand much more mathematics। और बढ़िया सवाल मिला मुझे, मैं लिखता हूँ आपके सामने, रुकिए, एग्जाम्पल में लिखते हैं हम, ए की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू और साइन एक्स माइनस टू, और
x+1 इंटू एक्स। अब मैंने जैसे कि पहले ही स्टेप में बोला था, हमें सारे रियल रूट्स चाहिए, सबको जीरो के इक्वल करो। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। अरे हाँ ना बोलो। इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 3/2। और अगर इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं। कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, क्योंकि मुझे पता है इसका ग्राफ कुछ आएगा। ओपनिंग पैराबोला ऐसे कहीं ऊपर की तरफ आएगा, जीरो इस लाइन को कभी टच करेगा ही नहीं। तो दिस थिंग इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर फॉर एनी एक्स। लेट्स आवर sin x इक्वल्स टू 2। जीरो करूंगा एंड दिस विल नेवर होल्ड बिकॉज sin x की मैक्सिमम वैल्यू इवन है। तो 2 तो कभी चू ही नहीं सकता वो। तो इससे हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रियल सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, अब इससे मिलेगा एक्स की वैल्यू -1, इससे मिलेगा एक्स की वैल्यू 0। तो अब इसे मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ। नंबर लाइन पर तो ये हो गया 0। कितने रूट है? एक आया 3। बना बनाया किसी का 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ -1 आया है, 0 आ गया है और 3/2 आ गया है। 3/2 मतलब 1.5। अगर मैं 2 रखूँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। 2 रखने में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसकी तो बात ही नहीं। ये तो हमेशा ही नेगेटिव है, क्योंकि ये -1 अगर मिनिमम वैल्यू लेगा -1, ये दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। 1 रखोगे तो भी -1 तो रहेगा। और मैंने 2 डाल रखी है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पूरा फंक्शन नेगेटिव रहेगा। पूरा फंक्शन क्या रहेगा? नेगेटिव। पहले तुम देखो ना, और तुम डाउट होगा साइन एक्स क्या है? -1 से 1 के बीच में, -2 दोनों तरफ में ऐड कर रहा हूँ। इट विल बी -3। दिस इज अ नेगेटिव नंबर क्योंकि इट विल add from -3 to -1। इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा। हाँ। अच्छा, 3/2 एक ही रूट है तो साइन चेंज होगा। 0 कितनी बार आया? एक बार। एक बार इससे 0 आया, एक बार इससे 0 आया, तो टोटल 0 हो गए 2 बार। ठीक है। ठीक। -1 कितनी बार आया? एक ही बार आया, तो साइन चेंज हो गया। तो इस पूरे का आंसर क्या बनेगा? इस पूरे का आंसर बनेगा, इतने फिनिश दिस थिंग। इसका आंसर क्योंकि हमें चाहिए नेगेटिव, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड 0 पे तो पॉजिटिव, 0 पे तो पॉजिटिव, 0 डाल लो, ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव खत्म। रूट कौन कौन से 0 है? ये रूट है, ये भी रूट है। कौन सा इंक्लूड नहीं करना? -1 इंक्लूड नहीं करना। तो 3/2 बट हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये इंक्लूड नहीं होगा, डिनोमिनेटर में है। ये इंक्लूड होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। हमारा जो एक्स बिलोंग करेगा, वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो करेगा तो, और हाँ, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर, हमें क्या पता। इसके लिए हम हमेशा रखेंगे -इन्फिनिटी, -1, ओपन, यूनियन, क्लोज, 3/2 to infinity. This is a required solution. So this is for today's lecture. Hope you can understand some basic mathematics and how to solve inequalities. If there is any doubt, please let me know in the comment section. Thank you. Bye, and we will in our next lecture we're gonna discuss the modulus function and the greatest integer function, which is quite asked in many questions. So we should learn those things also. Okay. So this is enough for today's lecture.
नहीं